Good morning. In this lecture, we will discuss about the chemical equation, hit and trial method to balance the chemical equation, and then we will do some problems based upon the stoichiometry, based on that balanced chemical equation. So first of all, we will write what is chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction is a process in which two or more substances interact. Two or more substances interact with each other and form new substance. So, when two or more than two substances they interact with each other and form a new substance, that is called a chemical reaction. So, in chemical reaction, what happens? Some old bonds broken and new bonds are formed. So this is general definition of chemical reaction. What is chemical reaction? Is just when any two substance or more than two substance they interact with one another and give some new substance. What happened during chemical reaction? Some old bond that broken and new bonds are formed. So what is chemical equation? Chemical equation is a method to express that chemical reaction. We can say is a symbolic representation of chemical reaction. Symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. Means all the chemicals or all the substances which are taking part in the reaction, they are expressed in the form of their symbols. Like some element like nitrogen, hydrogen, they are represented by their symbol. So elements are represented by symbol. Like hydrogen का symbol है H है, ऑक्सीजन का symbol वो है ऐसे. तो कोई भी जो compound है, that is represented by formula. फार्मूला हम कर चुके हैं, उसमें दो टाइप का फार्मूला भी था, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर. तो किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज फार्मूला. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, वी यूज इट्स फार्मूला CO2. C is the symbol of carbon and O is the symbol of oxygen. तो similarly some chemical change or chemical reaction, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? Chemical equation. So this is a basic about chemical equation. Chemical equation दो टाइप की होती है. First is unbalanced, second is balanced. Unbalanced means number of atoms in the reactant and product are not same. Number of various atoms in reactant side and product side are not equal. और बैलेंस्ड केमिकल क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स around reactant and product are equal.
we will use balanced chemical equation. There is no use of this unbalanced chemical equation. On the basis of balanced chemical equation, we will solve some problems that is known as a stoichiometry. So let's start. First, what type of information chemical equation that gives? Any chemical equation gives two types of information. Information given by chemical equation, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो कौन सी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है कौन सी इंफॉर्मेशन हमें देगी? तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन है. नंबर 1 को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, नंबर 2 को बोलते हैं क्वांटिटेटिव. Qualitative means quality, about the name of the reactant and product, and quantitative means amount. For example, we have this reaction, hydrogen react with oxygen to form water. So ये होगी balanced chemical reaction. Now hydrogen and oxygen, these two are reactants. So these are the reactants which interact with one another, and water which is formed, that is new substance, that is called a product. So in the reactant side we have H2 and O2. Here the old bonds are broken, and when water is formed, new bond is formed between hydrogen and oxygen. So the quantitative information is hydrogen react with oxygen to form water. This is called qualitative. Qualitative means quality, type, which type of substance react and which type of substance is formed. So qualitative information is just this, that hydrogen react with oxygen to form water. Quantitative information is about the quantity, amount in various ways, in terms of mole, in terms of mass, in terms of volume, in terms of number of atoms. So now this reaction, we have 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. So this is first information, that 2 moles of hydrogen react with that 1 mole of oxygen to form 2 moles of water. This is mole to mole relationship. Now we can also write here, because this is a gas, this is a gas, this is a liquid. So we can also write here that in terms of mass, what is the mass of hydrogen? 2 into 2, 4 gram, react with 32 gram to form 2 into 18, 36 gram. So this is a weight to weight relationship, and we can write like 4 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen to form 36 gram of water. So this also fulfill the condition of law of conservation of mass. What is law of conservation of mass हम बाद में डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में. वो एक टॉपिक है आपके बुक के अंदर, केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें आएगा. पहले 10th लेवल तक भी है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो रिएक्टेंट्स आर 4 + 32, 36, and product is 36. So balanced chemical equation fulfill the condition of law of conservation of mass. So third information, that we have a 2 mole of hydrogen, we can write 22.2 into 2, 44.8 liter hydrogen that react with 22.4 liter of oxygen to give
2 moles of water. We can write like this. So there may be mole to mole relationship, weight to weight relationship, mole to weight relationship, volume to volume relationship. So in this type of information is called quantitative information. Now we will do some problems one by one. First we will learn how to balance the chemical equation by hit and trial method. Just a simple equations which are used in this chapter. Actual balancing that will be in the chapter number 8 redox reactions. तो एक्चुअल मेथड वहां पे आएंगे. यहाँ पे सिंपल से मेथड है. जैसे सपोज C2H6 इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. हाइड्रोकार्बन है C2H6, हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ही बनता है. तो इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे आप 2 लगाओगे. हाइड्रोजन 6 है तो 3 हो जाएगा. अब ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3 7. तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2. ऐसे ही और रिएक्शंस जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया. बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है. यहाँ पे आ जाएगा 2 हाइड्रोजन हो गए हमारे 6. थर्ड इज लाइक C6H6 प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो C6 मीन्स यहाँ पे 6 लग जाएगा. हाइड्रोजन 6 means 3, तो 3 plus 12 15. Here we'll write 15/2. मैग्नीशियम नाइट्राइड है Mg3N2. इसमें वाटर डाल दो तो इट विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया. तो इस चैप्टर में जितनी भी इक्वेशंस आएंगी ज्यादातर आपको दी होंगी, नॉन होंगी, तो उसको ज्यादा भी याद करने की जरूरत नहीं है. 3 मैग्नीशियम हो गया. नाइट्रोजन 2 दिए हैं तो 2 यहाँ पे 6 + 6 12 हाइड्रोजन. तो ये बैलेंस हो जाती है. अब कैल्शियम फॉस्फाइड है Ca3P2. इसमें वाटर डाल दो तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3. तो ये छोटी छोटी सी रिएक्शन आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. 3 लगेगा, 2 लगेगा और 6 लगेगा. तो ऐसे बैलेंसिंग के बिना आपकी जो स्टिकोमेट्री की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी. तो शुरू करते हैं एक एक करके, देखेंगे कैसे हम रिलेशनशिप बनाना है. फर्स्ट इज कैलकुलेट. पहले हम करेंगे सिंगल रिएक्टेंट वाली. केस 1 में सिंगल रिएक्टेंट होगा. उसमें प्रॉब्लम फर्स्ट है calculate moles of KCl and O2 produced when 367.5 gram of KClO3 potassium chlorate KClO3 are heated. तो ये क्वेश्चन है. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl and O2 produced when 367.5 gram potassium chlorate are heated. तो पहले रिएक्शन लिखेंगे. KClO3 को क्या करना है, उसने बोला हीट, तो हीट कर दो. क्या क्या बनेगा वो भी दे दिया. तो रिएक्शन लिखनी इतनी मुश्किल नहीं है. तो KClO3 को हीट करोगे, KCl प्लस वाटर O2 बनेगा. अब इसको बैलेंस करना जरूरी है, तो इसको बैलेंस करेंगे. पहले ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा के यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो. अब इसकी जो मोल रेशियो है वो आपको नजर आ रही है. इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं और इसके हैं 3 मोल्स. तो हमें करना क्या है, आपको दिया है कैलकुलेट दी मोल्स. इसके भी मोल कैलकुलेट करने हैं, इसके भी मोल, और अमाउंट इसकी आपको दे दी. तो इसकी अमाउंट को आप पहले क्या चेंज करोगे, मोल्स में.
तो अब गिवन अमाउंट मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन अमाउंट 367.5 और इसका जब आप मास कैलकुलेट करोगे ये 122.5 आ जाएगा। दिस इज द मोलर मास ऑफ दिस KClO3। तो ऐसे करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाती हैं 3। अब किसके मोल्स निकालेंगे? मोल्स ऑफ KCl। अगर इसके 2 मोल्स हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, तो सीधा सीधा KCl के मोल्स कैसे आ जाएंगे? 2/2 इंटू 3। अगर उसके 2 मोल्स हैं, उसके भी 2 है, अगर इसके 3 होंगे तो उसके भी 3 होंगे। 2/2 इंटू 3 मीन्स 3 मोल्स। तो KCl के कितने मोल्स बनेंगे? 3। ऑक्सीजन के 3 मोल्स बन रहे हैं, तो यहां पे क्या करेंगे हम? 3/2 इंटू 3 9/2। ये आप सीधा यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि इसके 2 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं तो उसके 3 हो गए, तो इसका 1 होगा तो उसके 3/2, और इसके अगर 3 है तो मल्टीप्लाई 3 तो 9/2 आंसर आ जाएगा। सिंपल यूनिटरी मेथड। नहीं तो क्या करना है, जिसके भी आपने मोल निकालने हैं उसका मोल ऊपर, जिसके मोल्स जो दिए हुए हैं उसके मोल्स नीचे आ जाएंगे, और जो जिसके कंपैरेटिवली निकालना है आपने रिलेटिवली वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे इसके 2/2 इंटू 3 जो इसका है, इसका 3/2 इंटू 3 तो 9/2 मोल्स ऑक्सीजन बनेगी और 2 मोल्स KCl बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन। तो सिंगल रिएक्टेंट में ही सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस calculate volume of carbon dioxide gas produced at STP by heating 25 gram of calcium carbonate by heating 25 ग्राम CaCO3। तो रिएक्शन ये तो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं कि CaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लो। तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस है। अब आपने निकालना है वॉल्यूम किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको दिया है मास इसका, मतलब आपको CaO से कुछ लेना देना नहीं है। सीधा रिलेशन किसका बनाना है? इसकी मास दिया है, उसका वॉल्यूम निकालना है। दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसका जो मास, इसके जो मोल्स है वो कैसे आएंगे? 25 गिवन है और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 मोल्स इसके आ गए। अब अगर इसके 1/4 मोल्स हैं तो अकॉर्डिंग टू स्टिक्योमेट्री इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बन रहा है। अगर इसके 1/4 है तो इसके भी 1/4 मोल्स बनेंगे। लेकिन इसका निकालना क्या है हमें? वॉल्यूम। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 22.4 से, तो 5.6 लीटर जो है वो आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन दे दी, सिल्वर कार्बोनेट दिया है Ag2CO3, इसको किया हीट, ये बन जाएगा 2Ag सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन, ये भी गैस। ये रिएक्शन दे रखी है पहले से ही। आप बैलेंस है, चेक कर लो एक बार बैलेंस है कि नहीं। तो अब इसमें क्या करना है? कैलकुलेट वेट ऑफ रेजिड्यू obtained when 55.2 gram of silver carbonate
55.2 gram of silver carbonate is heated. आगे है also calculate total volume. Also calculate total volume of all gases. So first thing is what is residue which is remain in the solid form. ये दो gases बनेगी evaporate. Residue mean जो पीछे बच गया, the left behind, that is silver. तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, इसका मास. तो इसके लिए रिएक्शन आपको दे रखी है, उसमें सिंपली मॉलिक्यूलर वेट निकालो पहले इसका. अब अगर ऑक्सीजन को डबल करना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो रिएक्शन को, वो जो फ्रैक्शन वाला चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगा Ag2CO3. हीट किया, 4 मोल सिल्वर के हो गए सॉलिड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और 1 मोल हो गया ऑक्सीजन. तो हाफ को हमने 1 में चेंज कर दिया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए. अब इसके 2 मोल्स हैं नजर आ रहा है, इसके 4 मोल्स हैं, इसके 2 मोल्स हैं और इसका 1 मोल है. अब पहले तो हम निकालेंगे मास ऑफ सिल्वर. तो मोलर मास जो है इसका Ag2CO3 का वो होता है 276. इसके पहले मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स आ जाएंगे, गिवन मास दिया हुआ है 55.2, डिवाइड करेंगे 276 से, तो ये आपका आ जाएगा 1/5. कितने मोल्स आ जाएंगे, 1/5. तो अभी क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है सिल्वर का मास. तो कैसे आएगा, 4 मोल्स ऑफ सिल्वर, 2 मोल्स ऑफ, तो ये बन जाएगा 4/2 इंटू दिस 1/5. तो ये हो जाएगा 2/5. लेकिन उसने बोला है अमाउंट निकालनी है, वेट. तो इसको सिल्वर के मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. तो सिल्वर के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिल्वर का मास होता है 108, तो मल्टीप्लाई बाय 108, तो ये आपका आ जाएगा रेजिड्यू का मास 43.2. ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसने बोला है आल्सो कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस. गैसेस कितनी है इसमें, आप रिएक्शन को फिर से लिख लें. 2AgCO3 हीट किया, 4Ag सॉलिड प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. 2 मोल ये है और 1 मोल हमारे पास ये आता है. इसके कितने मोल्स हैं हमारे पास, 1/5. ऊपर कितने मोल थे, 2. तो अब पहले तो मोल्स निकाल लेंगे. 2/2 इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 2/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 1/5, तो ये तो हो गया 1/5. इसके मोल्स कितने आ जाएंगे, 1/2 इंटू 1/5, ये हो जाता है 1/10. ओके, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स इक्वल टू 1/5 तो कार्बन डाइऑक्साइड है, 1/10 आपके पास है ऑक्सीजन. तो टोटल हो जाएंगे 3/10. तो लेकिन हमें निकालना है वॉल्यूम. तो क्या करेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल कंसेप्ट में किया था. हाँ, तो वॉल्यूम इक्वल टू 3/10 इंटू 22.4. 22.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6.72 लीटर आपका आंसर है जो आ जाएगा. तो ऐसे हम मोल मोल रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स करेंगे स्टिकोमेट्री में. आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है ऐसे ही आगे. तो काफी क्वेश्चंस हैं जिसमें रिएक्शन दी होती है, नहीं तो आपको खुद लिखनी पड़ती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट should be heated to obtain
should be heated to obtain 2.4 into 10⁻23 2.4 into 10⁻23 ये नंबर दे दिया मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको कैसे करेंगे? पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को क्या किया है? हीट। तो रिएक्शन लिखें CaHCO3। ये तो रिएक्शन जो है वो 10th लेवल की है। इसमें क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बैलेंस ही है पहले से। तो अब कैसे करेंगे कैलकुलेट? अभी हमें दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी हम मोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स। तो कितने मोल्स हो जाएंगे ये? इसको डिवाइड करोगे तो 0.4। तो 0.4 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। अब उसने डायरेक्टली नहीं दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की फॉर्म में दे दिया। तो आपने मॉलिक्यूल को चेंज कर लिया नंबर ऑफ मोल्स में। अब इक्वेशन में देखेंगे, इसका अगर 1 मोल है तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास 1 मोल है। इन दोनों से कुछ नहीं लेना देना। तो अगर उसके 0.4 मोल्स बने हैं तो इसके भी 0.4 मोल्स ही बनेंगे। तो इसका उसने बोला है वेट निकालना है। तो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, वो होता है 162 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.4 इंटू 162 ये 64.8 आपका आ जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे डायरेक्टली मोल नहीं दिए, वेट पूछ रहा है वो, और दिया क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कुछ भी दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, जैसे हमने मोल कंसेप्ट में सीखा है, तो हम हर केस में क्या करेंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन दे दी बड़ी सिंपल सी। 2A टू फॉर्म 3B प्लस 5C, 2A टू फॉर्म 3B प्लस 5C। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मोल्स ऑफ A, कैलकुलेट मोल्स ऑफ A required to produce 7 moles of C। बहुत सिंपल है। तो पहले क्या करेंगे? बैलेंस तो है ये, इसमें 2 मोल्स हैं, इसके 3 मोल्स हैं, और इसके दिए हैं 5 मोल्स। हमें A और C को करना है आपस में रिलेट। तो निकालना है A के मोल्स कितने आ जाएंगे? इसके मोल्स हैं 2, C के मोल्स हैं 5 मल्टीप्लाई C के कितने बनाने हैं हमने? 7। तो 2/5 इंटू 7 आंसर क्या आ जाएगा? 14/5। तो 14/5 मोल्स ऑफ A रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 7 मोल्स ऑफ C। नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन और, कैलकुलेट वेट ऑफ H2 produced when 85 gram ammonia is heated. ग्राम अमोनिया इज हीटेड। तो पहले हम क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। अमोनिया, इसको हीट किया तो नाइट्रोजन प्लस ऑफ हाइड्रोजन बनेगा। दूसरा काम क्या करेंगे? इसको बैलेंस 2 मोल्स, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3। तीसरा काम मोल्स, सॉरी यहां पे 2 नहीं आएगा तो ये बैलेंस हो गई। 2 अमोनिया नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकालना है
और अमोनिया उसने दिया, नाइट्रोजन से कुछ नहीं लेना देना। तो अमोनिया का वेट दिया 85, तो उसके हम क्या निकाल लेंगे, मोल्स। तो 85/17 करेंगे तो इसके 5 मोल आ गए। अब उसका हमें निकालना है वेट। तो पहले मोल की फॉर्म में रिलेट करेंगे, इसके 2 मोल्स हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 × 5 मीन्स 15/2 मोल्स किसके, हाइड्रोजन के। तो वेट क्या होगा, 15/2 मोल्स को मोलर मास हाइड्रोजन का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 15 ग्राम आंसर। एक और क्वेश्चन है छोटा सा। ये सब एग्जांपल है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो एक ही है, सिंगल रिएक्टेंट। उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मोर देन वन रिएक्टेंट। तो ये इसका लास्ट है। इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, NH4 ट्वाइस Cr2O7। इसको हीट किया तो ये नाइट्रोजन और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 प्लस 4 मोल वाटर में टूट गया। तो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, बैलेंस्ड है। तो अभी निकालना क्या है, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, कैलकुलेट वेट ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट which is required to produce 3.04 gram of green residue, 3.04 gram of green residue। ग्रीन रेजिड्यू किसकी बात कर रहे हैं, this chromium oxide, only this is solid here, nitrogen is gas, water is liquid। So how to find, अब पहले तो Cr2O3 का मास निकाल लेंगे। रिएक्शन को फिर से लिख लें, अमोनियम डाइक्रोमेट हीट किया, N2 गैस, Cr2O3 सॉलिड, 4 वाटर लिक्विड। तो इसका मोल्स लिख ले, तो इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। इनको तो कुछ करना नहीं है, दोनों को रिलेट करना है। तो 3.04 के पहले मोल्स निकाल लेंगे। तो गिवन मास इज 3.04, ग्रीन रेजिड्यू का मास दिया है, डिवाइड इसका जो मोलर मास है वो 152 है। तो मोलर मास से डिवाइड किया, इसके जो मोल्स आ जाएंगे 1/50 आ जाएंगे। तो अगर इसका 1 मोल है, इसका भी 1 है, तो इसके 1/50 बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसके भी कितने बनेंगे, 1/50। तो अब इसके मोलर मास से हमें निकालना है वेट। तो इसका मोलर मास निकाल के उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी इसका मोलर मास होगा उससे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड यू विल गेट योर आंसर। So these are the problems in which we have only one reactant. Next lecture में करेंगे more than one reactant. Okay, thank you.